हेलो बेटा, हुण आपां करना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागनल complexes and square planar complexes. Crystal field splitting. Crystal field splitting in tetragonal, tetragonal ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਟਲ ਲਾਈਗਨ ਬੌਂਡ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਗਨਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਕਰਨ ਅਲੋਂਗ ਦ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ 4 ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮੈਟਲ ਲਾਈਗਨ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ ਔਰ ਇਲੋਂਗੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਟੈਟਰਾਗਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟੈਟਰਾਗਨਲ ਇਲੋਂਗੇਟਡ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਗਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਗਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਘੱਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਮੈਟਲ ਔਰ ਲਾਈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਲਾਈਗਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦ ਦ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਲਾਈਗਨ ਇਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇਗਾ। ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗੇਟਡ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਾਈਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅਲੋਂਗ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ। ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਈਗਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਰਿਪੈਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਟੂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਅਲੋਂਗ ਦ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਟਲ ਲਾਈਗਨ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਕੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੈਟਨਿੰਗ ਆਫ ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਫੀਲਡ, ਫਲੈਟਨ ਟੈਟਰਾਗਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫਰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ T2G ਐਂਡ EG ਸੈਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਲਾਈਗਨ ਹੈ ਮੈਟਲ, ਆ ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ। ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ 4 ਲਾਈਗਨ ਪਏ ਆ, ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਵੀ 2 ਲਾਈਗਨ ਪਏ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਐਟ ਇਕੁਅਲ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ, ਇਕੁਅਲੀ ਰਿਪੈਲ ਹੋਏ ਆ ਬਾਏ ਦਾ 6 ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਲਾਈਗਨ। ਟੈਟਰਾਗਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਾਂਸ ਲਾਈਗਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਟ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਰਜ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਲੋਂਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੋਂਗ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਹ 2 ਬੌਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਬੌਂਡ ਮੈਟਲ ਲਾਈਗਨ ਬੌਂਡ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਏ ਦਾ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਲਾਈਗਨ। ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਲਾਈਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਰ ਅਵੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਮੈਟਲ ਲਾਈਗਨ ਬੌਂਡ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗੇ 4 ਲਾਈਗਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਆਕਟਾਹੀਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਲਾਈਗਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੇਟਾ
रिपल्शन जी है ज़्यादा होएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जी है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड यू नो ज़्यादा बॉन्ड मतलब नेड़े आओगे तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग ज़्यादा होएगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी तो बॉन्ड लेंथ घट गई 4 मैटल लाइगेंड बॉन्ड दी इन एलोंगेटेड टेट्रागोनल ज्योमेट्री एलोंगेटेड इत्थे एलोंगेटेड आ जाना चाहिए एलोंगेटेड टेट्रागोनल ज्योमेट्री ठीक है बेटा। सो इत्थे 2 मैटल लाइगेंड बॉन्ड जिहड़े आ अलोंग जेड एक्सिस उन्हां दी बॉन्ड लेंथ की होगी ज़्यादा मोर देन 4 metal ligand bond lying in xy plane क्लीयर है बेटा। जे आ देखो इत्थे 2 तरह के बॉन्ड इन्होंने शो करते एलोंगेशन का ठीक है बेटा जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड लेंथ वध गई देख लो इन्नी बॉन्ड लेंथ आ इनू बी कहता जी एक्स वाई प्लेन च पई है 4 बॉन्ड लेंथ तो जे जेड एक्सिस एम एल जेड एक्सिस आ जोड़ा अलोंग पई है ए इत्थे ग्रेटर आ बॉन्ड लेंथ बी नालों जदों यही बॉन्ड जोड़े आ मतलब कंप्रैस हो जाए ये स्ट्रक्चर कंप्रैस हो जाए तो टेट्रागोनल ज्योमेट्री अगेन मिली डिस्टॉर्टेड होगी तो कंप्रैस हो गया फ्लैटनिंग कह देंगे फ्लैट हो जाऊगा तो इन्हां दी बॉन्ड लेंथ जी होर भी घट जाएगी। आ देखो ये जेड एक्सिस के अलोंग 2 मैटल लाइगेंड बॉन्ड दी बॉन्ड लेंथ घट जाएगी एज़ कंपेयर टू एक्स वाई प्लेन दे विच 4 जेडे मैटल लाइगेंड बॉन्ड लाई कर रहे सो इत्थे बॉन्ड लेंथ ए दी घट आ बी नालों क्लीयर बेटा। फ्लैटनिंग ये कहने टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन ठीक है ज्योमेट्री बनानी टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन एलोंगेशन जो जेड एक्सिस के अलोंग एलोंगेशन होगी जो जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड कंप्रैस हो गए होर नेड़े आ गए ठीक है जी तो बॉन्ड लेंथ घट जानी है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जानी है फ्लैटनिंग हो जानी तो ये अगे फिर फर्दर की हो जानी है जी बॉन्ड लेंथ इत्थे जी है बॉन्ड लेंथ घटनी है मतलब अनइक्वल बॉन्ड लेंथ्स हो गई टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के विच वैदर इट इज़ एलोंगेशन और फ्लैटनिंग तो बेटा तुसी की ऑब्जर्व करोगे कि फर्दर जोड़ा है T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल का वो स्प्लिट करेगा और EG का भी सैट फर्दर स्प्लिट करेगा क्यों करेगा हुण उन्होंने एक्सप्लेन करूँगी बेटा मैं पहला इत्थे एक्सप्लेन कर देना है की है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सी है ना जिहदे च चारों 6 मैटल लाइगेंड बॉन्ड बराबर सी जेड एक्सिस वाले भी तो एक्स वाई प्लेन वाले भी ठीक है 6 बराबर सी हुण जदों इन्हां 2 बॉन्ड्स नूं स्ट्रैच करता आई मीन टू से एलोंगेट करता तो टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ गई टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ गई तो इन्हां दी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है जिहड़े अलोंग जेड एक्सिस लाई करते हैं इन्हां दी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जिहड़ा EG सैट ऑफ ऑर्बिटल का दो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਡੀਜਨਰੇसी लॉस्ट हो जाऊगी EG सैट ऑफ ऑर्बिटल च बेटा DX² माइनस Y² सी ते DZ² सी तो पेरीसेंटर मेनटेन रखते हुए क्योंकि 2 इक्वली डिवाइड होने इक्वल इतों डिस्टेंस इक्वल रखना पेरीसेंटर तो ਇਹਦਾ इक्वल ਇਹਦਾ भी ठीक है तो थानू पता है यदी रेशो ये 1/2 है यदी भी रेशो 1/2 है क्लीयर है ठीक है तो ये एनर्जी लोअर हो जाएगी DZ² की क्योंकि रिपल्शन घट गई तो ऑब्वियसली एनर्जी घट जानी है DZ² की एनर्जी घट जाएगी ये फर्दर EG सैट ऑफ ऑर्बिटल अंडर द टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फील्ड ये स्प्लिट कर जाएगा इनटू 2 सैट ऑफ ऑर्बिटल्स एक ऑफ लोअर एनर्जी होएगा DZ² तो हायर एनर्जी होगा DX² माइनस Y² ये एलोंगेटेड टेट्रागोनली ज्योमेट्री फिर बेटा T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल दे विच भी तुहाडे कोल 3 ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल सी तो ऑब्वियसली ਇਹਦਾ भी बेरी सेंटर मेनटेन रहना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी क्योंकि जेड एक्सिस ਦੇ अलोंग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ऑर्बिटल ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ टर्म आनी है D ऑर्बिटल ਦੀ जेड टर्म है ना ਉਹਦੀ भी एनर्जी लोअर हो जाएगी ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀ DXY DYZ DZX तो ਇਹਦਾ मतलब कि एनर्जी लोअर होनी है DYZ ਦੀ ठीक है तो इन्हां दी रेशो
है दोवां दी 3 ऑर्बिटल दोवां दी एनर्जी लोअर हो जानी DYZ एंड DZX की। तो ओबवियसली बेटा एनर्जी जिहड़ी आ देखो एनर्जी हायर के दी होनी है, ओबवियसली एनर्जी रेज के दी हो जानी है DXY दी, एनर्जी लोअर के दी होनी है। आ देखो ਇਹਦਾ मैं ज़्यादा डिफरेंस दिता, ਇਹਦਾ मैं घट दिखाया क्योंकि एक दो ऑर्बिटल आ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ DYZ एंड DZX, ठीक है। तो क्यों क्योंकि थानू पता ਇਹਦੀ रेशो जे 2/3 है, इन्हां दी 1/3 है, तो ਇਹਦੀ एनर्जी जिहड़ी है ਇਹਦੀ रेशो होनी है 2/3, ठीक है ना। बार बार थानू दसना ना पवे। DXY दी एनर्जी 2/3 होनी है, ठीक है। तो ਇਹਦੀ एनर्जी कितनी होनी है 1/3, क्लीयर है ना। बैरी सेंटर मेनटेन रखते हुए तो ये डिस्टेंस घट रखा ज़्यादा रखा, क्लीयर। एंड नाउ हुण जो टैट्रागोनली डिस्टॉर्टेड फ्लैटनिंग होनी है ऑक्टाहेड्रल ज्योमैट्री की, तो 4 बॉन्ड जोड़े इन द XY प्लेन वो की हो जाओगे, उन्होंने एनर्जी की होएगी, उन्होंने एनर्जी जी रेज हो जाएगी XY प्लेन की, तो DZ की होर भी घट जाएगी। तो बेटा वो की करोगे, वो उल्टा कर देंगे, है ना। उल्टा की करांगे कि जोड़ा एनर्जी कि घटनी है बेटा, ਜਿਹੜੇ XY प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ तो बॉन्ड स्ट्रोंग बनया, सॉरी उल्टा बोल गई, अलॉन्ग Z एक्सिस नेड़े आ गए, 2 मेटल लाइगन ज़्यादा नेड़े आ गए, ठीक है, एज़ कंपेयर टू द मेटल लाइगन बॉन्ड 4 मेटल लाइगन बॉन्ड लाइंग इन द XY प्लेन। जे नेड़े आ गए तो ओबवियसली बेटा की होगा, ये ज़्यादा नेड़े आ गए, ये दूर हो गए हैं। इन्हां दी एनर्जी जिहड़ी है XY दी वो की होगी लोअर हो जाएगी, XY दी लोअर हो जाएगी, Z वाला कंपोनेंट दी इनक्रीज़ हो जाएगी, क्लीयर। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ EG ਤੇ T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट कर जाना, ये बेरी सेंटर मेनटेन करते हुए कि एनर्जी घट जानी है बेटा इक्वली। ये तो बेरी सेंटर मेनटेन रखा, यदी रेशो 1 होनी है, दूजे की भी 1 होनी है। सो DZ वाला ज़्यादा नेड़े आ गया तो DZ स्केयर इत्थे दिखाया नहीं है। इस जो आप करते हैं तो बुक्स जी भी तुम देखोगे वो मैंशन नहीं किया होगा। सो यदी एनर्जी भी रेज होनी है +1/2 जो भी वैल्यू होएगी, यदी -1/2 DZ से यदी एनर्जी बढ़ गई, DX स्केयर -Y स्केयर की घट गई। यदी T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल जो ट्रिपली जनरेट सीगा डी जनरेट सीगा वो फर्दर सपलिट हो जाएगा, जिहदे विच एनर्जी XY की घट जाएगी, क्योंकि हुण देखो मैं इनू ज़्यादा शो कर रही हूँ, XY की घट जाएगी एंड ये थोड़ी यदी एनर्जी थोड़ी शो करनी है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली DYZ ते DZX की एनर्जी बढ़ जानी है, क्लीयर। ये हुण मैं सारा तुहानूं एक्सप्लेन करना है। हेलो बेटा, आप कर रहे थे कि स्प्लिटिंग जी है डी ऑर्बिटल की इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कंपलैक्सिस कैन ईजीली अंडरस्टूड फ्रॉम द नॉन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्सिस। बेटा मैं ड्रॉ करदा कि डीजनरेसी जी है ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन, ये है बेटा। फिर जे ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देख रहे हैं बेटा, फिर रेज हो जाते हैं इन रेज इन एनर्जी एज स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल लाइगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड, octahedral field raised in energy, spherical field on transition metal ion, degeneracy retained रहती है, एनर्जी रेज कर गए डी ऑर्बिटल की, पर ठीक है। फिर आप कहने फर्दर स्प्लिट हो जाता T2G एंड EG सैट ऑफ ऑर्बिटल जो कंपलैक्स ऑक्टाहेड्रल बन जाता, बैरी सेंटर मेनटेन T2G एंड EG सैट ऑफ ऑर्बिटल
ट्रिपली ਡੀਜਨਰੇਟ क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री होंगी है जो 6 लाइगन बराबर सेम है ऑक्टाइडल फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांजिशन मैटल ਦੇ अराउंड T2G ਤੇ ਇਹ DXY DYZ DZX हो गया DZX ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ EG DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ प्लस 6TQ एक इलैक्ट्रॉन दी -4DQ ठीक है बेटा बाय डेफिनेशन ये 10 डेल्टा हो जो 10DQ हुण बेटा जो टैट्रागनल जोमैट्री हो गई आपां कहा कि ये एनर्जी जी है फर्दर बैरी सेंटर TEG सैट ऑफ ऑर्बिटल फर्दर की हो जाता है स्प्लिट कर जाता है इंटू 2 सैट ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी कि लोअर होनी है अलोंगेशन जो अलोंगेशन इन अलोंगेटेड टैट्रागनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल जोमैट्री मिलनी है तो क्योंकि Z एक्सिस के अराउंड लाइगन जोड़े आ घट अप्रोच करते हैं ठीक है जी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है रिपल्शन घट फील करते हैं एज कंपेयर टू द 4 मैटल आइगन बॉन्ड तो ओबवियसली Z कंपोनेंट की एनर्जी घट जानी है थानू मैं दस चुकी हाँ बैरी सेंटर मेनटेन रखना है तो आ बेटा DZ स्क्वायर की एनर्जी होगी एनर्जी कि बढ़ गई बेटा इक्वली DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर ठीक है बेटा बेरी सेंटर मेनटेन रहना सो ओबवियसली इक्वली इन्हां दी स्प्लिटिंग होएगी आ बैरी सेंटर दे अराउंड एनर्जी भी इक्वल होएगी है ना प्लस हाफ माइनस हाफ इत्थे हुण 10 T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल दे विचों भी DYZ ते DZX दी एनर्जी घट जानी है बेटा तो ओबवियसली किहदी वध जानी है DXY दी तो XY दी डबल टाइम वधेगी 2/3 वधेगी तो इनू आ की हो गया DXY दी एनर्जी बैरी सेंटर मेनटेन इत्थे एनर्जी डिफरेंस घट रखा क्योंकि 2 क्योंकि ये रेशो 1/3 यदी एनर्जी होनी है इन्हां दी ठीक है सो यदी एनर्जी कितनी होनी है प्लस 1/3 सॉरी 2/3 तो यदी की होनी है माइनस 1/3 ठीक है ये हो गया एक DYZ DZX क्लीयर है जो एक ये ऑक्टाइडल फील्ड च एक होगा अलोंगेटेड इन अलोंगेटेड टेट्रागनली जो डिस्टॉर्ट हो जाता है जो जोमैट्री ऑक्टाइडल इक्वल नहीं रहते चारों 6 लाइगन मैटल लाइगन बॉन्ड इन अलोंगेटेड टेट्रागनली डिस्टॉर्टेड जोमैट्री ऑक्टाहेड्रल जोमैट्री तो बेटा ये ड्रॉ करना आना चाहिए तो थानू ये बेस थानू एनर्जी हुण सब तो घट कि है बेटा सब तो घट सब तो ज़्यादा कि है जे इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस d orbitals of a transition metal ion in elongated tetragonally distorted geometry सब तो ज़्यादा एनर्जी कि होनी है दस दो मैनू DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर उस तो घट बेटा DZ स्क्वायर ग्रेटर दैन हाँ जी DXY greater than DYZ equal to DZX सो बेटा इदा फीलिंग कोई
क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता जिहदे च कि टैट्रागोनली डिस्टॉर्टेड जोमैट्री इलोंगेटेड दित्ती है तो थानू आह पता होना चाहिए और जोमैट्री आह ड्रॉ करनी आनी चाहिए है ऑक्टाहेड्रल दी ड्रा करके फिर इदा एक्सप्लेन करना है। फिर वो बाकी सारे अब्बा प्रिंसीपल दैन हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसीपल वो सारा कीप इन माइंड करके तुसी इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। क्लीयर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कि वध सब तो ज़्यादा कहदी है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर दी। जे इनक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होवे बेटा इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस d orbitals in of obviously transition metal ion in elongated tetragonally distorted geometry is the field distorted geometry दी बजाय तो field is सब तो घट एनर्जी इनक्रीजिंग ऑर्डर सब तो घट एनर्जी कहदी है डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड एक्स लेस देन डी एक्स वाई लेस दैन डी जेड स्क्वेयर लेस दैन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये किहदे लिए है एस जोमैट्री लिए बेटा अलोंगेटेड जोमैट्री लिए अलोंगेटेड टैट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फील्ड दे लिए जिहदे विच along the z axis ligand दी bond length वध जाती है रिपल्शन विद द अप्रोचिंग ligand d orbital दे इलेक्ट्रॉन दी घट जाती है एज कंपेयर टू द 6 एज कंपेयर टू द 4 मेटल ligand bond lying in the xy plane उन्हां दी bond length obviously घटेगी। सो obviously ये किहदी ज़्यादा होएगी along the z axis मैटल लाइगन बॉन्ड ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ए ਉਹਨਾਂ ਦੀ अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ए ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆ ਇਨਕਰੀजिंग ਆਰਡਰ डिक्रीजिंग ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ देख लो दोबारा ठीक है। इतने लिखना भी है ये नीचे डी एक्स आ जोड़ा फर्दर सपलिटिंग हुई और किद्दां होनी है इन्हूं दिखा दिता मैं थानू क्लीयर। हुण बेटा आपां गल करनी है कि जदों फ्लैटनिंग ऑफ टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जोमैट्री हो जानी है फील्ड हो जानी है तो फिर की होएगा कि आ दो मैटल लाइगन बॉन्ड जोड़े है ये ज़्यादा नेड़े आ जाने एक लाइगन ज़्यादा अप्रोच कर जोगे मैटल दे डी ऑर्बिटल दे तो रिपल्शन ये ज़्यादा फील करोगे तो ऑब्वियसली इन्हां दी एनर्जी उन्नी ਜਿਹੜਾ जेड कंपोनेंट वाले डी ऑर्बिटल की एनर्जी उन्नी रेज कर जानी है ठीक है उन्होंने एक्सप्लेन कर सकते हैं तुसीं। फिर ਇਹਦਾ मतलब एज कंपेयर टू दीज 4 मैटल लाइगन बॉन्ड विच लाइंग इन एक्स वाई प्लेन जिन्हां दी बॉन्ड लेंथ बी आ इन वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होएगी बी ए दी बॉन्ड लेंथ घट होएगी ए इज़ लैस दैन बी तो ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ी एनर्जी किहदी रेज हो जानी है बेटा रिपल्शन जिहड़ी है जिहड़ी किहदे च कड्डी बेटा एक्स वाई वाले च है ना क्योंकि ये ज़्यादा नेड़े आ गए है ना इसकी बॉन्ड लेंथ घट है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ठीक है। सो ओबवियसली रिपल्शन अलॉन्ग द जेड एक्सिस ज़्यादा होनी है जेड एक्सिस ज़्यादा हुई तो बेटा फिर की होगा ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਜੈਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਵੈਦਰ ਉਹ T2G ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ EG ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ XY ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਲੈਟਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ਸੋ ਇਨ क्रिस्टल ਉਹ ਸੀ क्रिस्टल फील्ड ਇਹ ਸੀ क्रिस्टल फील्ड ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ क्रिस्टल फील्ड ਸਪਲਿਟਿੰग ਇਨ elongated tetragonally
distorted octahedral field. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। obviously carry of d orbital of transition metal ion, in crystal field splitting of d orbitals of transition metal ion in flattened tetragonally distorted octahedral field। ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ octahedral field ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਡੀਜਨਰੇਟ ਔਰਬਿਟਲ ਸੀਗੇ, ਡੀਜਨਰੇਟ ਔਰਬਿਟਲ ਸੀ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ of d orbitals of transition metal free transition metal ion ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਲਾਈਗੈਂਡ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਟੈਟਰਾਗਨਲੀ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਆਇਨ 6। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ of transition metal ion, keep in mind 6 clear। so distorted geometry ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਆਹ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹ ਸੀ, ਬਣਨੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ XY ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਗੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੇ ਨੇੜੇ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਕਿ ਵੱਧ ਗਈ? ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ Z। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2 ਮੈਟਲ ਲਾਈਗੈਂਡ ਬੌਂਡ ਅਲੋਂਗ Z ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੋਂਗ ਦਾ Z ਐਕਸਿਸ, ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਉਨੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ? Z। ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ Z ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ T2G and EG set of orbitals get split up in such a way that the component of d orbital which carry Z component will have more energy, they will raise in energy, and the d orbital which carry XY component, X and Y component will be lower in energy। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ XY ਪਲੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ Z ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆ ਸੀ ਐਨਰਜੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਐਨਰਜੀ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾय spherical octahedral field, but degeneracy ਜਿਹੜੀ ਹੈ of d orbital of transition metal ion retained, complex ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ retain ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ T2G ਸੈੱਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, T2G ਐਂਡ EG। dx square minus y square dz square, ਇਹ ਡੈਲਟਾ O ਆ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ T2G ਸੈੱਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਆ, dxy dyz dzx। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? -4dq। ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? +6dq। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ flattened you can say in flattened tetragonal geometry, in flattened
tetragonally distorted octahedral field splitting further occur, splitting of d orbitals of transition metal ion। ठीक है, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ, ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੀਏ ਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਜੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਲੋਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਆ, ਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ 1:1 1:2, ਸੋ ਇਕੁਅਲੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਦਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ 2/3, ਜੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ 2/3 ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਲੋਅਰ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 3 ਆਰਬਿਟਲ ਆ, ਇੱਕ 2 ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ 1/3 ਰੇਸ਼ੋ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 2/3 ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ 2/3 ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟੀ -2/3 ਜੋ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਡੀ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਆ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ +1/3। ਕਲੀਅਰ ਆ, ਫਰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ increasing order of energy of various d orbitals in of transition metal ion in tetragonally distorted in flattened tetragonally distorted field is ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ એનર્ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड दी। डी जेड एक्स इक्वलेंट टू डी वाई जेड, उस तो ज़्यादा डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, उस तो ज़्यादा डी जेड स्केयर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ डी जेड स्केयर ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਟੈਟਰਾਗਨਲੀ ਫਲੈਟਨਡ ਟੈਟਰਾਗਨਲੀ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਫੀਲਡ ਡੀ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਡੀ जेड स्केयर ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ डी जेड स्केयर ग्रेटर दैन डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ग्रेटर दैन डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ग्रेटर दैन डी एक्स वाई। क्लीयर है, क्वेश्चन बार बार आता है कि डी सब तो घट एनर्जी के ज़्यादा किहदी है डी जेड स्केयर दी, सब तो घट किहदी है डी एक्स वाई दी इन फ्लैटनड ਟੈਟਰਾਗਨਲੀ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਫੀਲਡ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਹ ਆ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆ डी वाई जेड ਤੇ डी जेड एक्स ਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ਦੀ ਇਨ elongated tetragonally distorted octahedral field ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ
ज़्यादा एनर्जी डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर दी है, सब तो घट डी वाई जेड ते डी जेड एक्स ऑर्बिटल दी है। प्लीज़ क्लीयर पॉइंट बेटा ये दोबारा दिखा रही हूँ मैं थानू कि क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग जिहड़ी है इन टेट्रागनली डिस्टॉर्टेड फील्ड की होएगा, इन टेट्रागनली डिस्टॉर्टेड फील्ड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फील्ड। डी ऑर्बिटल की सप्लिटिंग किद्दां होनी है थानू दिखा रही हैं, किद्दां लिखना है। अलोंगेटेड टेट्रागनली डिस्टॉर्टेड, ध्यान ना देख लो, ठीक है बेटा, सारा समझाया थानू। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन in a elongated tetragonally distorted geometry या field आना dx square minus y square greater than dz square greater than dxy greater than dyz equal to dzx, या फिर increasing order of energy of various d orbitals of transition metal ion in elongated tetragonally distorted field is dyz is equal to dzx less than dxy less than dz square less than dx square minus y square। क्लीयर बेटा। फिर असी किया क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन फ्लैटेंड टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल आयन का 6 ही रहना। इनक्रीजिंग ऑर्डर, फिर रीजनरेसी आपां शो करती, फिर रेज इन एनर्जी इन स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड करती, फिर ऑक्टाहेड्रल फील्ड दे विच सप्लिटिंग T2G EG सैट ऑफ ऑर्बिटल च करती, फिर बैरी सेंटर सारे दे मेनटेन रखते हुए सब तो ज़्यादा एनर्जी डी जेड स्केयर दी, और फिर उस तो घट डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर दी, फिर डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स दी, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स एंड सब तो घट डी एक्स वाई दी। क्लीयर है बेटा। ये सारा ये नीचे ये लिखा इन फ्लैट एंड टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फील्ड सप्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। फिर इनक्रीजिंग ऑर्डर सानू दसदा ऑफ एनर्जी ऑफ वेरीअस डी ऑर्बिटल्स। मैं इनक्रीजिंग दसिया, डिक्रीजिंग नहीं दसिया, ठीक है। क्लीयर बेटा। बेटा जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ते आवांगे तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है ना, ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स है, ये विचों आह दो लाइगेंड कंप्लीटली रिमूव करते जान अलॉन्ग द जेड एक्सिस, अलॉन्ग द जेड एक्सिस। आ भी रिमूव हो गया, आ ते आ रिमूव करता, तो साडे को सिर्फ आह ज्योमेट्री बची, आ वाली, ठीक है। आ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। जे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी 4, ठीक है। सो इत्थे जिहड़ी है जेड एक्सिस दे अलॉन्ग तो कोई ही नहीं लाइगेंड, तो डी जिहड़े जेड कंपोनेंट वाले लाइगेंड आ उन्हां दी एनर्जी होर भी की कर जानी है, फर्दर डिक्रीज़ हो जानी है, ईवन एक्स वाई नालों घट जानी है, ठीक है। उन्होंने हुण मैं दिखाने लगी हाँ थानू। पहला आपां क्रिस्टल फील्ड आपां हुण गल करनी है क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग of d orbitals of a transition metal ion in square planar field। बेटा थानू पता कि कोऑर्डिनेशन नंबर की होना फिर ट्रांजिशन मेटल आयन दा इन स्क्वायर प्लेनर कंपलैक्स। फोर, ठीक है। स्ट्रक्चर तुसी ड्रा कर सकते हैं ना, मैं हुण इत्थे सिंपल दिखा दिंदी हां। इक्वल बॉन्ड लेंथ होनी है, तो इसका मतलब लॉन्ग जेड एक्सिस कोई रिपल्शन नहीं है, ठीक है। सो डी जेड कंपोनेंट वालों की एनर्जी होर भी घट जानी है। सो इन्हू दिखा सकते क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग। पहले आप ऑक्टाहेड्रल ही ड्रॉ करनी है बेटा। डी जनरेसी
of d orbitals of free transition metal ion। फिर जो 6 लाइगेंड अप्रोच करते हैं तो साढ़े को ये ऑक्टाइडल फील्ड होनी चाहिए सी। ठीक है, इतों ही बने आप देखा ना कि 2 जे रिमूव कर दिए। वैसे अब मैं स्क्वायर प्लेनर सीधा भी जा सकती हूँ, मैं सीधा भी दिखाऊंगी। एनर्जी रेज्ड बाय spherical octahedral field, energy obviously of d orbitals है ना, by energy raised by spherical octahedral field of transition metal ion, but degeneracy of d orbitals is retained। ठीक है, फिर उस तो बाद बेटा की हुंदा है, हुन ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ T2G ਐਂਡ EG ਸੈਟ ਆਫ ऑर्बिटल ਚ। T2G EG ਇਹਦਾ ਹੈ dx² - y², ਇਹ d z² dxy dy z dz x। बेटा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड की हुंदा कि एनर्जी जिहड़ी है फर्दर जिहड़ी एक्स वाई दी डी जेड नाल भी ज़्यादा डी जेड स्क्वायर नाल भी ज़्यादा हो जाती है। बेटा ਇਹਦੀ एनर्जी रेज होनी है, कि एनर्जी रेज होनी है x² - y² दी इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, क्योंकि जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट नहीं है, कोई लाइगेंड नहीं अप्रोच कर रहा, रिपल्शन घट आ, तो ओबवियसली वो एनर्जी उन्नी लोअर हो जानी है कंपोनेंट की। तो इन्हों विचों किहदी एनर्जी घट हो जानी है dz² दी, dx² - y² दी काफ़ी वध जानी है। आ देखो dx² - y² ਇਹਦੀ एनर्जी वध गई, dz² दी उन्नी ही घट जानी है, dz² दी बहुत ज़्यादा घट जानी है ईवन दैन द dxy। हुण इत्थों बेटा असीं आ लवांगे बैरी सेंटर रखिया सी। ठीक है, ਇਹਦੀ एनर्जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ xy ਦੀ एनर्जी होर भी रेज होगी। हाँ देख लो dxy ਦੀ एनर्जी dz² नालों फिर किहदी घटी काफ़ी होर घट गई, किहदी dyz ते dzx दी dyz एंड dzx दी। सो सब तो घट एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड crystal field splitting of d orbitals of a transition metal ion। सब तो घट के दी है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ various d orbitals in square planar field। d orbital के दे बेटा of transition metal ion in square planar field की होएगा बेटा सब तो घट एनर्जी के दी है dyz dzx दी dyz इक्वल टू dzx उस तो लेस दैन dz² लेस दैन dxy लेस दैन dx² - y²। बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर के विच हो जाएगा dx² इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा dx² - y² ग्रेटर दैन dxy ग्रेटर दैन dz² ग्रेटर दैन dyz एंड dzx। ਇਹਦਾ मतलब सब तो घट एनर्जी कहती है बेटा dyz ते dzx की, सब तो घट लैस लीस्ट एनर्जी, सब तो ज़्यादा कहती है dx² मैक्सिमम कहती है dx²
ਮੈਕਸਿਮਮ dx² ਮਾਈਨਸ y²। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲੋਂਗੇਟਡ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਟੈਟਾਗਨਲੀ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਆਕਟਾਈਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? DYZ ਐਂਡ DZX ਦੀ ਲੀਸਟ એનર્ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? dx² y² ਦੀ। ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਲੈਟੈਂਡ ਟੈਟਾਗਨਲੀ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਲੀਸਟ એનર્ਜੀ dxy ਦੀ ਹੈ, ਲੀਸਟ એનર્ਜੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? dz² ਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ।